Namaskar and welcome to Sansad TV once again. I am Vishal Dahiya and I am joined by my colleague Harsh Ranjan here as well. And for the next 2 hours, both of us will take you through all the details and analysis of the ongoing assembly election results in 5 states. The results seemingly have solidified as of now, clear-cut indications as to who is forming the government in which state, and BJP seemingly has that clear edge in the state of Uttar Pradesh, in the state of Uttarakhand as well. Punjab seems to have thrown a surprise in terms of giving chance to a new party, that is Aam Aadmi Party. Of course, they were the main opposition party in the previous assembly elections, but this will be for the first time that they will be getting a chance to govern the state. And a lot of setbacks there for the top faces in the state of Punjab as well. We'll talk about Goa, Uttarakhand and Manipur as well. And for more on this, we're joined by 2 senior journalists here in the studio. Let me first introduce them to you. Beginning with, we have with us Mr. Sandeep Phukan. He's deputy editor with The Hindu, and Mr. Manish Anand is also joining us, associate editor with ANI. Welcome, both of you gentlemen. Quite an interesting day and a lot of figures, a lot of facts to talk about. But let's first start with, of course, the obvious pick, that is the state of Uttar Pradesh. Sandeep, I'll start with you. If you look at the numbers, BJP clearly has shown it once again that they are the winners, hands down, in the state of Uttar Pradesh. There is, a slight difference in the numbers they have from 2017 as well, but that is something which can be analyzed later. The question which I have is, what is it that prevented the Samajwadi Party and its allies from making that mark, which eventually it looked like in the first few days of the campaign that they are making it, and specifically I'm talking about the Western Uttar Pradesh? I think, we have to start with Western Uttar Pradesh because, that was the region where people thought that there will be a lot of impact of the year-long farmers' agitation. It is an agrarian belt and, farmers are very powerful lobby there. So they thought that, the opposition thought that it's a winning combination, Samajwadi Party coming together with Rashtriya Lok Dal, with its dedicated vote bank among the Jat community. But I think what people fail to understand is that over the years, that was also a region that had seen a lot of conflict. It has stabilized now. From the 2013 riots until now, it's been almost 10 years. But the region is sharply polarized. So BJP may have lost some support during the farmers' agitation, but this was one of the reasons. Elections, both in Punjab and Uttar Pradesh, was one of the reasons why the government went back. See, even while repealing the 3 farm laws, the government did not have a debate. They did not want to consider on the merits because the government firmly believed that the 3 bills that they had brought in were in the interest of small and marginal farmers. But it was political expediency in regions like Uttar Pradesh, in Punjab. But Punjab, of course, BJP was not so much of a force, and in these elections they were fighting without their traditional ally of Akalis. But they clearly had in mind the region of Uttar Pradesh. So the anger had dissipated. See, so, from November, they say that a day is a long time in politics. There's another angle and explanation to that as well, which is being talked about. And I'd like to bring in Manish here on that. Manish, if you look at the history of Samajwadi Party alliances, the parties with which the Samajwadi Party has, gone into alliance, Bahujan Samaj Party, BSP, didn't work. Congress didn't work, with the RLD also previous time. With RLD, looks like it didn't work this time around as well, specifically in that bastion. So, is there some, underlying factor which we also need to look at? Because the votes are not getting transferred, or rather, this combination of Samajwadi Party with other, political parties that doesn't seem to work where the SP doesn't have influence. Of course, you're right. I think social churning in Uttar Pradesh needs to be analyzed. Samajwadi Party had an alliance with the Congress in the past, two brothers. That was a slogan once. UP ke do ladke. UP ke do ladke. And then Congress, not Congress, Samajwadi Party, BSP, RLD had an alliance in 2019 elections. So they have done all the things, but the arithmetic never worked in their favor.
So what I understand is that since 2014 elections, social churning is happening in UP. We understand to be convenient to say, we say that Jatavs in UP will only vote for the BSP. But in my interactions during election coverages, they are very smart people, everybody in UP. They identify who is going to become the chief minister. People are no more voting for an MLA or a candidate to become an MLA. They are voting for somebody to become the prime minister or the chief minister. So here in UP, the choice was between Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav, because Mayawati was nowhere seen in the reckoning. And because of that, the social basis of various parties, Samajwadi Party, in the case of Samajwadi Party, the vote base of BSP is mutually exclusive. Even if you have an alliance, that doesn't work. The votes don't transfer. That is why in 2019 Lok Sabha elections, the BSP won more seats than the SP. Because BSP votes didn't go to the SP. So at the same time, there is another factor that we need to understand is that the social basis, as per the understanding of the people of the SP, are more socially active, and they are said to be a little more on the muscle power, and because of which the BSP vote base, they look for some sort of social security. They feel threatened, because if they come, land grabbings will happen, the law and order situations will deteriorate, and then their cattle stock and other things, they may have, they apprehend risks to those things. So that is why the social basis of the SP and the BSP are mutually exclusive. And because of that thing, I think somewhat the BSP vote is gradually getting transferred to the BJP, because only Adityanath and Akhilesh were in the reckoning to become the chief minister. So BSP vote base on a large extent, I think, may have chosen Adityanath, then Akhilesh, because of social security reason. You remember when Akhilesh Yadav was the chief minister, and he has been a chief minister for 5 years. It is not that the people haven't seen him as a chief minister. There were close to 300 communal riots during his tenure. So the law and order issue, people still remember Mayawati's administration, that she was a very good administrator on the law and order front. This issue has a sort of reckoning among the people. So certain aspects, doesn't seem to have played well for them. Harsh ji? मनीष, आप बहुत सही बात कह रहे थे कि जो एक सोशल सिक्योरिटी का इशू है वो ये था। हमें भी यही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वाज नेवर एन ऑल्टरनेटिव फॉर योगी आदित्यनाथ, हालांकि इसकी चर्चा बहुत होती रही है। तो एक तो सोशल सिक्योरिटी था कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, लैंड ग्रैबिंग को लेकर, ये बहुत सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर यूपी में देने की कोशिश की गई। दूसरा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक जो लाभार्थियों, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और उसमें खास करके महिलाएं इस बार की हैं, और जो लाभार्थी हैं वो बहुत ही सशक्त रहे हैं, और उनका वोट बहुत छुपा हुआ वोट था जो खुल के सामने नहीं आया, और उसने ये कमाल कर दिया। निश्चित रूप से अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो जो टॉयलेट सरकार ने बनवाई गांवों के अंदर में, हर घरों में एक टॉयलेट मिल गया, इज्जत घर जिसे कहा गया, और ये जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत टारगेटेड और वो जीपीएस वगैरह से टैगिंग करके जब घर बनता है किसी स्टेज पर तब जाकर के पैसे ट्रांसफर होते हैं, और जो पहले हुआ करता था कि ग्राम सभा में जो लोग नेता वगैरह होते थे वो कट लिया करते थे, उन चीजों का खत्म हो जाना और बेनिफिशियरी एक क्लास बन जाना, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बेस तैयार हुआ है पिछले 7 सालों में, ऐसा बिल्कुल हमें लगता है। साथ ही साथ जब हमारा पैंडेमिक हुआ और बड़े संख्या में बड़े शहरों से लोग वापस अपने अपने गांव की तरफ चले गए, तब ये जो अन्न की जो योजना है, अच्छे किस्म की गेहूं और चावल और भी साथ में कुछ देने का चीज, इससे लोगों की सेविंग्स हुई। जो अन्न खरीदने पे पैसे जो खर्च हुआ करते थे वो उनकी नेट सेविंग्स हुई, और उनसे भी कहीं ना कहीं उनके पास एक सिक्योरिटी का सेंस आया। तो ये जो बेनिफिशियरी क्लास आपने जो बोला है, ये निश्चित रूप में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा दिया है, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू। बिल्कुल। और विशाल, ये बेनिफिशियरी के फायदे का हम असर ये भी देख रहे हैं संदीप, कि जो वोट परसेंटेज है बीजेपी का, वो कहीं एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है।
बिल्कुल। यूपी में खास करके बात करें 45% प्लस के आसपास है, जो कि 28-30% तक भी अगर वोट्स आते हैं तो पार्टी विनिंग पोजीशन में होती है। ये 45% प्लस, अब एग्जैक्ट फिगर तो अभी हम देख के बता देंगे। अभी एग्जैक्ट फिगर और सही आंकड़ा आने में अभी टाइम भी लगेगा, लेकिन Sandeep will come to you as well, but Ashok Tandon ji is also joining us. Ashok ji, I'd like to welcome you here, and we're talking about Uttar Pradesh. You must have heard a portion of the discussion here. Now, the question which we're trying to answer here is not only what worked for the BJP, but also conversely what didn't work for the SP-RLD combined, and let's not forget the BSP factor here as well. When we are looking at the numbers, it's just one seat for the BSP. See, one factor which my co-panelists have forgotten perhaps is the Modi factor. See, since 2014, then 2017, 2019, now 2022, Modi factor has been a common phenomenon. And the way Prime Minister Modi led the charge in Uttar Pradesh, as far as the campaign is concerned, as far as highlighting the schemes of the central government is concerned, and also providing a stable government in Uttar Pradesh, corruption-free, transparent government, law and order issue. These issues were, the way these issues were highlighted by Prime Minister himself during his campaign and high voltage campaign. So that factor, I think, has demolished all the myths about the caste alliances, etc. All segments of the society, all regions of the state, they have overwhelmingly voted for the BJP. So it is not simply the social phenomena, etc., what my friends were talking about. It is singularly the Modi factor, which has again delivered power to the BJP. Of course, I'm not undermining Yogi's own contribution in providing a stable government, a corruption-free government, which ensured law and order. But one common factor which, benefited all segments of the society was the social welfare schemes of the Prime Minister. And the Prime Minister's name itself, Modi factor, has worked wonders in Uttar Pradesh. Okay. Now, Sandeep, how do you look at, or how do you explain the complete decimation of BSP in the Congress? They were already in doldrums. They were already deep down below somewhere. But now they've been further pushed into a far away corner. Congress coming down to 2 from 7. BSP coming down to 1 from 19. Well, it's not very difficult to explain Congress's decimation. The party is on a decline, quite clearly. We'll have to wait to see what kind of vote share they have performed. Without a shadow of doubt, Priyanka Gandhi's campaigns have received attention. They have also become a talking point. But it didn't materialize into seats. No, it was never meant to. I will tell you why. Because if you had travelled in UP, increasingly it appeared clear that it was a bipolar election, which is different from all other elections that we have seen or covered. Here it was a direct contest on most seats between the incumbent, the ruling party, the BJP, and the challenger, which was the coalition formed by Akhilesh Yadav's Samajwadi Party. What is intriguing or interesting is actually why did BSP, just as Manish was mentioning... Yeah, party with a dedicated vote bank. Not only party with a dedicated vote bank, Mayawati, I live in Greater Noida, Gautam Budh Nagar is, Greater Noida is her, native place. She belongs to Badalpur, which is in Greater Noida. And she was actually seen, as Manish was pointing out, she was actually seen as a very good administrator when it came to law and order. Her record has been fairly good. Now, it almost seemed to me that she sat out these elections. The campaign was not of that level that, as Ashokji was saying, here you have Prime Minister who's dealing with multiple things but taking time out to address rally after rally after rally. Akhilesh Yadav also has been, seen on the ground. Traveling in his bus, crisscrossing the state. Priyanka Gandhi has also been doing rally, but Mayawati was simply missing. Except a few rallies, you did not see her on the ground. If you can explain that, okay, maybe Corona
But all these other senior leaders are also affected by corona or pandemic. So I think it's intriguing to me that she chose to sit out these elections. Manish, how do you explain that? I totally agree with what Sandeep is saying. Mayawati, not only in this election, but in the previous two elections also, she had hardly been campaigning. Even in the 2017 elections, she was not coming out for the first two phases. So that is very ironical. What is she up to? That is very tough to explain, that as a head of a political party which ruled the state so recently is not so campaigning hard. That's very tough to explain, and maybe multiple term chief minister. कई बार vote- chief minister बन चुकी हैं. the 90s belonged to the BSP in UP, and even in 2007 she got absolute majority. So, and she is not too old. She's hardly approaching 60. So she could have campaigned. But it's very difficult to explain why she sits out. अब हर्ष जी, अब यूपी से थोड़ा सा इधर चलते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास रावत साहब जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं। तो अगर रावत साहब जी, हर्ष जी, उत्तराखंड की जो स्थिति है उसमें एक, अगर हम कहें कि जो एग्जिट पोल्स थे विशाल, एग्जिट पोल्स एक तरीके से वहां के मामले में फेल हुए हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो क्लियर कट मेजॉरिटी में है। हालांकि खटीमा सीट जो है वो पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। ये बीजेपी के लिए एक I think this is a record of the sorts, because in Uttarakhand, Dhami is one of the next chief ministers in line to have lost the assembly elections. Rather, in fact, you should say that Uttarakhand is a graveyard of chief ministers. Okay. You have the Electoral graveyard. You had 11 chief ministers. हरीश रावत भी हार गए लाल In 20 years, they had 11 chief ministers. Now you'll have the 12th chief minister. That's quite intriguing. Let's bring in Mr. Rawat here as well. वीरेंद्र सिंह जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं, तो उत्तराखंड में जो इस वक्त आंकड़ा जो उभर कर सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जिसे कहा जाए कि साफ बढ़त है, पूर्ण बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वो सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है ये दर्शाता है, और खासतौर पे जिस तरह का आकलन अभी तक किया जा रहा था कि हंग असेंबली हो सकती है या फिर कांटे की टक्कर है कांग्रेस और भाजपा में, लग रहा है कि जो मतदाता हैं वो इस तरह का मन नहीं बनाए हुए थे? जी, आपने सही फरमाया कि बहुत क्लोज फाइट लग रही थी एग्जिट पोल को देखते हुए, और बाकी हरीश रावत, क्योंकि अगर आप देखें इस पोल्स में कांग्रेस के पास बहुत बड़ा चेहरा था हरीश रावत, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी में देखें तो उनके सीनियर लीडर जो है या तो गवर्नरशिप पे चले गए हैं या फिर उतने रेकनिंग में नहीं है ड्यू टू ओल्ड एज और whatever reasons. So it was thought to have been a very close fight, but in the end you have seen that BJP has really maintained the momentum. And as you mentioned, that although the chief minister has lost the election, but I don't think that he had enough time at his disposal when he was made the chief minister after shuffling for the third chief minister's post. So लेकिन ये बात सही है कि बीजे, और मुझे लगता है जो अभी पहले एक बात अभी चली थी कि मोदी मैजिक जो है, अभी मोदी मैजिक चल रहा है, और यूपी देखें और चाहे उत्तराखंड देखें तो हिंदी बेल्ट का जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पे मोदी का मैजिक चलता है पूरी तरह से, और ये इस चुनाव में भी देखने को मिला है। और ऐसा लगता था कि यूपी में बहुत टफ फाइट होगी, और वैसे एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त दिखा रहे थे यूपी में, लेकिन फिर आपने देखा कि कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ चली गई और उत्तराखंड में तो भी और भी अच्छा कर रही है। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो बीजेपी है, रूलिंग पार्टी है, इट इज गेनिंग टू मच फ्रॉम द मोदी फैक्टर। एंड यूपी में तो खास तौर से एमवाई वर्सेस एमवाई मैं कहता हूं, इट वाज ए बाइनरी ऑफ सॉर्ट। बीजेपी का एमवाई मींस मोदी एंड योगी, और उधर समाजवादी पार्टी बिल्कुल ठीक उसको लेके लोग चले थे, लेकिन इस बार वो फेल हो गया है। और मतदाता का एक पॉलिटिक्स इज नॉट अ जीरो सम गेम। अब वो मुझे लगता है वो जीरो सम गेम की तरह वर्क करता है कि आप जी बिल्कुल। रावत जी, आपके पास दोबारा हम पहुंचेंगे। उत्तराखंड की बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। कई सारे पहलू हैं इसके, कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर और नजर डालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले हर्ष जी एक बार डेटा सेंटर की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ आंकड़ों को। अमृता हमारी सहयोगी शायद हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं। शुक्रिया विशाल और हर्ष आपका। डेटा सेंटर में इस वक्त की जो
ताजा अपडेट है, जो एकदम फ्रेश नतीजे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। लोकसभा को 80 सीटें देता है और विधानसभा की 403 सीटें यहां पर। और जिस तरह की लहर हर बार चुनाव में हम देखते हैं, बेहद दिलचस्प होते हैं यहां के नतीजे, क्योंकि जो जनता है वो एक लहर के साथ एक पार्टी को सिराखों पर बिठाती है। आप देखिए नतीजे देख रहे हैं आप, 263 सीटें भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर आगे बढ़ रही है और ये सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती हुई देख सकते हैं आप। उसके बाद समाजवादी पार्टी 135 सीटों पर, बीएसपी 1 सीट पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीट पर, अदर्स के खाते में 2 सीटें गई हैं। तो ये इस वक्त के रुझान है जो अब तक आए हैं और सबसे ज्यादा जो सीटें आप देख रहे हैं खाते में जाते हुए, तो वो है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके बाद अगर हम वोट शेयर की बात करें तो जल्दी से आपको दिखाती हूं कि वोट शेयर की ये जो तस्वीर है आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी 42.3% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी। उसके बाद समाजवादी पार्टी 31.6% के साथ, और उसके बाद अदर्स 13.1%, बीएसपी 12.7% और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे कम 2.3%। तो ये अब तक का वोट शेयर है जो नतीजों में सामने आया है और तस्वीर बदलती हुई लगातार दिख रही है। लेकिन यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में अभी थोड़ी देर पहले आए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा भी कि एक बड़ा इंकलाब जो है पंजाब की जनता ने इस बार दिखाया है। देखिए किस तरीके से तस्वीर जो है वो एकदम पलट गई है। आपको 92 सीटें, आप देख सकते हैं, आपको 92 सीटें, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को 18 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें हैं, हालांकि यहाँ पे बीजेपी को नुकसान, शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें, अदर्स को 1 सीट। तो ये पंजाब की तस्वीर है, अभी तक के जो लेटेस्ट अपडेट है, जो ताजा रुझान है। और अगर शेयर की बात करें, वोट प्रतिशत का जो शेयर है, इसमें आप देख सकते हैं आपको 42.4% का वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर इस समय की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 22.9% का शेयर, बीजेपी के पास 6.5% और अदर्स के खाते में 10.2% का वोट शेयर। यह है पंजाब की तस्वीर वोट शेयर के लिहाज से। और पंजाब के बाद अगर हम अगले राज्य का रुख करें, यहां उत्तराखंड, देवभूमि, पहाड़ी राज्य, यहां पर भी जो तस्वीर है वो बेहद दिलचस्प है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 48 सीटों के साथ इस वक्त सबसे नंबर 1 पे है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इसके बाद नंबर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 18 सीटों के साथ, आपके खाते में एक भी सीट नहीं है, बीएसपी 2, अदर्स के खाते में 2 सीटें। तो ये उत्तराखंड के अब तक के लेटेस्ट ताजा रुझान है। और अगर शेयर की बात कर लें तो शेयर की तस्वीर आपके सामने आ गई। बीजेपी 44.1% के साथ उत्तराखंड में भी लगता है सरकार बनाती हुई दिख रही है, सबसे बड़ी पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 39.2% के साथ, आप जो है वो 3.5%, बीएसपी 4.6% वोट शेयर, अदर्स के खाते में 8.6 वोट शेयर। तो उत्तराखंड की यह तस्वीर आपके सामने थी। और उत्तराखंड के बाद चलिए आइए रुक कर लेते हैं दूसरे राज्य का। जी हां, मणिपुर की जो तस्वीर है, 60 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट सीटों का, बीजेपी 5 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 24 सीटें, एनपीपी 7 सीटें, एनपीएफ 5 सीट, अदर्स के खाते में 11 सीट। यह है मणिपुर का अब तक का ताजा रुझान। और मणिपुर में वोट शेयर किसके खाते में कितना गया है, आइए आपको बता दें। वोट शेयर के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिख रही है, 37.5%, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16.7% और इसके साथ ही एनपीपी 16.9%, एनपीएफ 10.5% और अदर्स के खाते में 18.4%। तो मणिपुर की यह तस्वीर थी वोट शेयर के लिहाज से, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आ जाइए सबसे छोटे विधानसभा के प्रदेश, गोवा, 40 विधानसभा सीटें यहां पर। यहां का भी मुकाबला बेहद दिलचस्प। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में आप देख सकते हैं 20 सीटें जो है वो गई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 11 सीटें, आपके खाते में 2 सीट है। टीएमसी को कोई सीट नहीं मिली है, खाता नहीं खुला है, अदर्स के खाते में 7 सीटें। तो गोवा का ये था सीटों का अब तक का जो रुझान है, वो आप देख सकते हैं। इन सीटों पर ये पार्टियां आगे हैं। और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें, गोवा में बीजेपी जो है
सबसे बड़ी पार्टी यहां पर उभरी है, 33.4% का वोट शेयर लेकर सबसे आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी गोवा में। उसके बाद नंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 23%, और उसके बाद अगर हम आपको देखें 6.8%, टीएमसी 5.2%, अदर्स के खाते में 31.6%। तो यह है गोवा विधानसभा की तस्वीर। तो पांचों राज्यों का ये ताजा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया सीटों के लिहाज से और वोट शेयर के लिहाज से। ओवर टू यू विशाल। थैंक यू अमृता। तो हमने देखा कि अभी ताजा स्थिति क्या है रुझानों की और जो सीट पार्टियां जीत गई हैं उनकी। उत्तराखंड चलते हैं, उस पर बात करते हैं। रमेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, बहुत धन्यवाद आपको। जी, जैसा कि बातें हो रही थी कि उत्तराखंड में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ है। अगर वोट शेयर की भी बात करें तो 5.5% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के पास हैं यहां पर। अब यह है कि सरकार तो पार्टी बना रही है, मुख्यमंत्री को लेकर चूंकि वो चुनाव हार गए हैं, क्या चर्चा चल रही है? हालांकि बीजेपी क्वार्टर्स से ये चीजें आई थी कि मुख्यमंत्री वही होंगे। देखिए, ये बात आपने सही कही कि ये चर्चा का विषय है कि धामी को मौका नहीं मिला अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा समय देने का और इसलिए वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने लास्ट के 6 महीने में अच्छा काम किया, लिहाजा पार्टी को उनके ऊपर विचार करना चाहिए। और कपकोट एक ऐसी विधानसभा है जहां से उनके सहयोगी जीते हैं, तो सीट्स के लिए भी उनकी बात चल रही है। बहरहाल ये भविष्य के गर्भ में, क्योंकि बीजेपी हमेशा सरप्राइज लेके आती है। लेकिन जहां तक बात मैं करूं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तराखंड का ये 5वां विधानसभा चुनाव है और पिछले 4 विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो लोगों जनता ने परिवर्तन के नाम पे वोट दिया, लेकिन इस बार जनता ने परिवर्तन नहीं किया, फिर से डबल इंजन की सरकार को मौका दे दिया। इसके पीछे अगर मैं मानूं तो 2 बड़े कारण हैं, जो है M+M, महिला प्लस मोदी इक्वल टू दिस लैंडस्लाइड विक्ट्री। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी केदारनाथ में पूजा करने के लिए आते हैं, वहां से उद्बोधन करते हैं, तो वो लोगों, खासकर उत्तराखंड के लोगों को बहुत पसंद आता है। जब वो बनारस में जाते हैं, भगवान शिव के पूजा करते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। जब वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। और ये जो एक लाभार्थी या मैं कहूंगा बेनिफिशियरीज की बात हो रही है, इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि बेनिफिशियरीज को जो सीधा लाभ मिला है उसी के चलते आज बीजेपी को यह फायदा मिला है। उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फैक्टर था, हाई इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर था, जो पशु जो है वो आपकी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा एक फैक्टर था, पलायन एक बड़ा फैक्टर था। उसके बावजूद भी महिलाओं ने बड़ी तादाद में निकलकर, तकरीबन पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा महिलाओं ने उत्तराखंड में वोट किया और ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महिलाओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा निकल कर आई। तो ये स्पष्ट है कि महिलाओं ने साइलेंटली वोट किया, मोदी की लीडरशिप में वोट किया। एक और दिलचस्प बात मैं जो आपके साथ साझा करना चाहूंगा, ये बात सच है कि स्टेट लीडरशिप से उत्तराखंड की जनता बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे लगा कि अगर उत्तराखंड का विकास कोई कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। उसके पीछे भी बड़े तथ्य हैं, क्योंकि जो रेल परियोजना चल रही है, या जो 4 धाम रोड का काम चल रहा है, या जो 1.5 लाख के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे आम आदमी की नजर थी और उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला। अब आपने बोला मुख्यमंत्री की बात, तो जाहिर है ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है कि अब मुख्यमंत्री नेक्स्ट कौन बनेगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी कोशिश कर रहे हैं कि साहब उन्हीं का नाम सामने आए, लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी कौन सा सरप्राइज लेके आती है। लेकिन हाँ, लोग ये जरूर चाहते हैं कि जैसे 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए गए इतने बड़े मैंडेट, 2/3 मैंडेट के बाद भी, इस बार जो बीजेपी चीफ मिनिस्टर बनाए वो कम से कम 5 साल गवर्नेंस दे, बिकॉज स्मार्ट गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो कम से कम 5 साल के लिए काम करें। जी बिल्कुल। भट्ट साहब, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब पार्टी दे सकती है। हमारे साथ विवेक सिंह जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भारतीय जनता पार्टी के। विवेक जी, स्वागत है आपका संसद टीवी में। और सबसे पहले तो आपकी पार्टी को और आपको मुबारक। कई प्रदेशों में, खासतौर पे अगर उत्तराखंड की जहां हम बात कर रहे थे, वहां जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उसके ठीक उलट आपकी पार्टी को बहुमत मिला है। तो पहला सवाल तो यही कि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं, तो अब इसका क्या रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? विवेक जी की आवाज, विवेक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही।
विवेक जी आप अनम्यूट कर लें, तब तक हम मनीष जी और हमारे साथ संदीप यहाँ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, इनसे बात करते हैं। तो उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, उत्तराखंड पे फिर बात आगे जारी रखेंगे विशाल, लेकिन पंजाब जो है, थोड़े पंजाब पे चर्चा कर लें, क्योंकि खबर जो है वो पंजाब है जी। ना सिर्फ इसलिए कि एक नई पार्टी ने वहां सरकार बनाने जा रही है, आम आदमी पार्टी, बल्कि इसलिए भी कि आप देखें 117 सीटों में 90 से ज्यादा 92-93 सीटें अभी तक रुझानों में और जो जीत है उसकी आ चुकी है। तो पंजाब में क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे? मेरे से पूछ रहे जी, हैं हर्ष जी? हाँ, या, sure. देखिए इसमें मुझे लगता है ये तो साफ है कि ये बिल्कुल लैंडस्लाइड है, और अगर आप नतीजे देखें तो चौंकाने वाले नतीजे। नवजोत सिंह सिद्धू जो हमेशा पंजाब मॉडल की बात करते थे, अपने चुनाव हार गए। जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री थे वो चरणजीत सिंह चन्नी, वो दोनों सीटों से हार गए। फिर जो सिद्धू ही नहीं हारे, अकाली दल के मजीठिया भी हार गए जी। तो मतलब, और सुखबीर जब तक आया, अब मैं मुझे नहीं पता, लेकिन सुखबीर सिंह बादल भी ट्रेल कर रहे थे जी। तो इससे ये दर्शाता है कि जो वहां के वोटर थे वो बिल्कुल ही तंग आ चुके थे, जो इंग्लिश में बोलते हैं कि दे वर फेड अप ऑफ द कन्वेंशनल पार्टीज, जो क्योंकि पंजाब में हम जानते हैं कि नॉर्मली हर 5 साल में बदल जाता है। हालांकि ऐसा रहा है, एक टर्म जब अकाली बीजेपी की जब अलायंस थी तो उन्होंने कंसेक्यूटिव 2 टर्म उन्होंने रूल किया था, बट नॉर्मली एवरी 5 इयर्स बदलते हैं। इस बार कांग्रेस ने बहुत एक बड़ी दाव खेली, उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाया, अपने आप ही खुद ही कहने लगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पंजाब में अराउंड 38% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। चन्नी जी रविदासिया हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो उनको लगा कि ये कंसोलिडेशन होगा वोट में और वो जिता देगी, बट ये हुआ नहीं। लगातार देख रहे हैं हम लोग कि जो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, दरअसल वो मास्टर स्ट्रोक सेल्फ गोल के लिए हो जा रहा है। बिल्कुल सेल्फ गोल थी, जो एक्चुअली सिर्फ उनको हटाना ही, जो हटाने का तरीका था वो गलत था। हरीश रावत जो खुद ही अब हार चुके हैं, वो प्रभारी थे। अब उन्होंने रात के 12 बजे उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई जा रही है। अब वो प्रभारी का वो दायित्व नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर का दायित्व है, या पीसीसी का होना चाहिए था। वो नॉट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज सिटिंग इन दिल्ली, यू कैन नॉट ट्वीट कि आप वो कल हम एमएलए की मीटिंग बुलाएंगे। आपने जिस तरीके से अमरिंदर सिंह को हटाया वो एक क्वेश्चनेबल तरीका था जी। और जैसे कि, हालांकि ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमरिंदर सिंह पॉपुलर थे, वो खुद भी चुनाव हार गए। तो बात दरअसल ये है, जो मैं आपको पहले बता रहा था हर्ष जी, कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिटिशियन थे, लोग उनसे अब ऊब गए हैं, वो नए कुछ चीज ट्राई करना चाहते हैं। मिस्टर केजरीवाल वहां पिछले बार 2017 में वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थे, लेकिन वो अकाली दल के एक्सपेंस पे वो उन्होंने ग्रो किया था 2017 में। इस बार उन्होंने जो लैंडस्लाइड है, मतलब सबकी वोट उन्होंने ले लिया। वो मतलब दे हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम अकाली सपोर्टर्स से भी वोट मिला उनको, अपना तो वोट वो है ही, और कांग्रेस को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया। जब लास्ट में आ रहा था तो 17 या 19 सीटों पे कांग्रेस बढ़त जी इस वक्त राइट नाउ इट सेज 18 फॉर द कांग्रेस as far as Punjab is concerned. So it's a clear sign that people were fed up with the conventional politicians. They want to try out something new. Okay. Mr. Kejriwal sold this dream of Delhi model, better schools, because these are real issues, government schools. People who cannot send their children to private schools for expensive fee, will a government school provide उतनी बढ़िया क्या शिक्षा दे पाएगी? क्लिनिक और आपका विशाल, वैसे भी हम देखें कि 2014 में पंजाब से लोकसभा की 13 सीटें आती हैं। 2014 में भी जब मोदी लहर थी और उस समय केजरीवाल जी भी दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, तो 4 सीटें, 4 या 5, 4 सीटें उस समय भी आई थी, जो कि 13 में से 4, यानी कि लगभग आप 1/3 आप कह सकते हैं कि उसके पास था। But the larger question there, Harsh ji, and Manish, I'd like to bring you in here, is when we have to look at this change. It's a tremendous victory which has been handed over by the people of Punjab to Aam Aadmi Party, and given the
traditional politics or traditional politicians, conventional politicians, which Sandeep was referring to there in Punjab, how difficult or easy do you think this new inning for Aam Aadmi Party will be? One, they're going to step out of Delhi vis-a-vis governance for the first time. They have won elections, they have been in opposition as well, but this time it's about governing the state. Of course, Aam Aadmi Party will have definitely a big challenge in Punjab to deliver, because this will be a state where they'll have land and police both. They will have no complaints to make that I don't have the police with me, no land with me. You want a break? No, that's all right. We'll come to that aspect which you're pointing out, because that's a very interesting point which you're making. And, I'd like to, since Vivek Singh is once again with us, Vivek Singh, Bharatiya Janata Party के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं. विवेक जी, क्या अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है. जी विवेक जी, आपसे पहले जब हम बात कर रहे थे तो सवाल बड़ा सीधा साधा था, और उस वक्त हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे, तो मैं वापस उत्तराखंड पे जाता हूं क्योंकि आप हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं. पंजाब पे भी दोबारा आएंगे आपके पास भी, लेकिन उत्तराखंड के नतीजों की अगर बात करें तो बहुत ही आपकी पार्टी के लिए सुखद नतीजे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आपके चुनाव हार गए हैं. तो इसका क्या अब हल निकाला जाएगा पार्टी की तरफ से? देखिए, इसका निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, जो स्टेट प्रभारी हैं वही करेंगे. इसके ऊपर जो भी समितियां वहां पे हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव हारना थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी दुखद है. तो अब जो केंद्रीय नेतृत्व इसके ऊपर जो निर्णय लेगा वही आगे आप सबके बीच में भी आएगा. जी, और अगर पंजाब की तरफ रुख करें, क्योंकि अभी हम पंजाब की बात कर रहे थे, तो अकालियों से अलग हटकर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आपकी पार्टी ने हाथ मिलाया, उसका कुछ नतीजा, कोई पॉजिटिव नतीजा आपकी पार्टी को मिला नहीं? देखिए, पंजाब में हमारे पास वैसे खोने को काफी कुछ तो था नहीं, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से कोशिश की, माननीय प्रधानमंत्री जी के अपना दौरा हुआ, आपने देखा, उसको भी थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया उसमें भी. तो पंजाब में हमारे पास ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं था, लेकिन हमारा वोटिंग परसेंटेज वहां पे बढ़ा है. जो अभी तक की जानकारी है उसमें हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और आगे अगले चुनाव में जिस तरीके से होगा उसके हिसाब से तैयारी किया जाएगा. जो गलतियां वहां हुई हैं उसको देखेंगे. जी, मिस्टर अशोक टंडन is still with us. Mr. Tandon, I'd like to bring you in here on the issue of Punjab elections, and as both Sandeep and Manish here in studio were referring to and pointing out, the question again which we are trying to explore and understand is that how difficult or easy it would be for the Aam Aadmi Party to now govern a state other than Delhi, and they have a huge responsibility because this is a thumping mandate which they have got. Of course, but Vishal, before I come to Punjab, I want to make a small comment about UP, because my friends were saying they could not decipher how could Mayawati be so silent. And see, one factor which I think... Yes, please continue, Mr. Tandon. Okay, looks like we've lost that connection with Mr. Tandon there. But Manish, I jumped in between, so I would request you to continue with your thoughts there on the Punjab thing. What I'm saying is that in Delhi, Mr. Kejriwal has been in power for 7 years. But on many occasions, he says that I don't have land nor the police. So he shirks a lot of responsibilities and focuses on education and healthcare. We see that the conditions of the roads in Delhi are not so great, what Sheila Dikshit had left, because all the flyovers were built by Sheila Dikshit and all the hospitals were built by Sheila Dikshit. But in Punjab, he'll have a huge challenge, because Punjab right now, going beyond decimation of Congress, Akali Dal and all, I think Punjab is in the midst of a major socio-economic crisis. And a financial as well, let's not forget that. It is a highly indebted state. They are taking lots of loans to pay their salaries and pensions. The Green Revolution benefits saturated almost about 10 years back. Now the farmers even are not earning enough to match the kind of investment or the input costs that they incur on the agriculture front. That is why we saw such an aggressive farmers protest against the 3 laws. They set out for 3 years, 1 year here on the border of Delhi. So what I see is that the drug issue, which is a big thing in Punjab. The parents of the youth there are very
anxious that the drug has become all pervasive. Secondly, unemployment in Punjab is a big issue. No economic activities on a large scale or attraction of investments in the industrial sector took place in the regime of the Congress, nor in the Akalis time. And because of the penetration of Akalis in the businesses, in the transport business and so many businesses, they were not addressing the issue of unemployment of the youth. So the joke is that all the youth are, are becoming singers in Punjab. So they are taking to singing than doing jobs. So in a nutshell, it's an uphill task as far as Aam Aadmi Party is concerned. Quite a lot on that list out there. But Sandeep, coming to analyzing as to what gave them this huge mandate of 92 out of 117. Now, one angle which need to be explored here is the farmers' agitation as well, because majority of them were from Punjab. Now, do you agree with this aspect and this explanation, which is also being put forward, is that the beneficiary of the farmers' agitation ultimately ended up being Aam Aadmi Party, because people obviously were not happy with Shiromani Akali Dal. They were already in alliance with BJP when the laws were passed. BJP, as we heard the leader, does not have too much stake in the state on their own. The Congress did make a lot of noises, but doesn't look like that it cut much ice with the voters there. Yeah, so it basically takes me back to the same point that I said, that these were all parties in power who've been in power in the state alternatively. So they tried to elect a new party, and ironically, if you believe the Congress actually said that Mr. Kejriwal's Aam Aadmi Party was one of the first parties to implement the 3 farm laws in Delhi, in the legislature. So, so it's an interesting choice why they made, but I firmly believe that, there comes a time in any state when voters look for options, better alternatives, and this is the moment for AAP, and which they could encash. But going ahead, there will be many challenges. For example, the issue of pollution. Manish touched upon drug, the issue of border security. The other issue that one has to sort of look at is, if Bhagwant Mann, so far he is a Lok Sabha MP, he is a very passionate MP. As a journalist, when I listen to him from the Lok Sabha press gallery, he comes across as a very passionate MP, but one has to wait and see how he performs as chief minister, because the image so far has not been of a very serious politician. बिल्कुल पंजाब के मामले में विशाल, क्या हम ये कह सकते हैं कि जितनी आम आदमी पार्टी की जीत है उतनी ही ये कांग्रेस की हार है, क्योंकि जैसा संदीप ने कहा कि पीपल वेयर रियली फेड अप विद द इंटरनल बिकरिंग्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी. बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब 6-7 ये सितंबर में ये सिलसिला शुरू हुआ, और सितंबर से लेके आज तक कांग्रेस ने दोनों ही रूलिंग पार्टी सत्ताधारी दल और विपक्ष के दोनों के पोजीशन दोनों ही ने ले लिया. सिद्धू विपक्ष के नेता थे और चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर थे. Okay, we'll hold the discussion on Punjab here for a little while, because we'll soon be joined by senior journalists from Punjab as well. And then we'll have various other angles to look at as well. But since Mr. Ashok Tandon is back with us, Mr. Tandon, I'd like to take you to Uttarakhand. We were earlier talking about it in your absence, and we're trying to make sense of what actually worked there for BJP, despite the fact that the chief ministers was changed one after the other, and the current incumbent has also lost his election, but the party seems to be, have made home with thumping numbers. Allow me to make a small comment first on Punjab. See, corruption was a very important issue, or it's going to be a big challenge for the Aam Aadmi Party, because people of Punjab are fed up with the corruption of the Akali regime as well as the corruption of the Congress regime. So this could be one huge challenge for the new government in Punjab. I also want to make a brief comment about UP, because my friends were trying to decipher why Mayawati played the passive role.
See, one factor according to me is that Mayawati knew that she can't challenge the BJP, but she also did not want the SP government to be back in UP because her cadre would prefer a BJP government rather than an Akhilesh government. This could be one of the factors. So coming back to Uttarakhand, I think the way infrastructure was developed in Uttarakhand, because Uttarakhand has always been deprived of the road structure, the highway structures and development. So this could be one factor, because I remember when Mr. Nitin Gadkari went to launch the election manifesto of the party in Uttarakhand, the only talking point or only the talk of the town in the entire Uttarakhand was that the infrastructure has improved. Plus, the shrine board kind of an arrangement which the previous chief minister had made, some kind of an umbrella arrangement, giving all the powers of the spiritual and religious places to a bureaucratic-led system, there was a huge opposition to that. So when Dhami came, the first thing he did was, apparently at the instance of the High Command, to dismantle that structure. Okay. That also, I think, helped in, at least taking care of the huge sentiment against this of all the mathas and the religious leaders and the Shankaracharyas or whosoever are, very popular. They control a lot of religious places in Uttarakhand. But I think, again, I would say it obviously a common factor in all the BJP victories happens to be the Modi magic. Okay. और विशाल, जो कॉमन फैक्टर की बात कह रहे थे अशोक जी, ये बात भी काफी हद तक सही है, क्योंकि आप देखिए कि वैसे तो प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश ही प्यारा है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो कई बार वो स्वयं भी कह चुके हैं कि उत्तराखंड का उनके लिए, उनके दिल में एक खास स्थान भी है। अक्सर वो जाते भी रहे हैं, अक्सर उसकी बात भी करते रहे हैं। तो इस वजह से भी हम ये जो देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर की बात हो रही थी, वोटर क्या कर रहे हैं उसकी बात हो रही थी, पूरा फुल सपोर्ट मिला है बीजेपी को और बहुत ही शानदार स्थिति है वहां सरकार बनाने के लिए। निस्संदेह मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड जो है, क्योंकि मेरे लिए मतलब अगर पर्सनली अगर आप मुझे पूछे कि मैं सोचता हूं कि हर इलेक्शन में एक एक्स फैक्टर होता है, तो कौन सा स्टेट एक्स फैक्टर होगा? पंजाब और उत्तराखंड, क्योंकि पंजाब में इतनी भारी बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ये किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था, वो 60, 69। और दूसरा उत्तराखंड में एग्जिट पोल कह लीजिए, ओपिनियन पोल कह लीजिए, चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, तब भी ऐसा दिख रहा था जैसे नेक एंड नेक हो। बिल्कुल, मतलब कोई ओपिनियन पोल अगर भाजपा को थोड़ा 2 सीटें आगे दे रही थी, तो कुछ अदर ओपिनियन पोल दे रहे थे कि नहीं, कांग्रेस सरकार बना लेगी 1-2 सीटों के बल पे, तो 36 चाहिए उनको, 38, 39 मिल रहे थे। लेकिन ये नतीजे बिल्कुल विपरीत है। अब 50 के पास आसपास होंगे। जब मैं आ रहा था तो 46, 47 पे लीड कर रही थी। 47, 48 is something where we are, but that's a comfortable. No, that's 36 is what they need, and they have 10 more. So I mean, it's more than comfortable, and it's fairly clear. More so, if you consider the fact, जो हर्ष जी बार बोल रहे थे अभी, कि the chief minister has lost. And they have already, he was the 3rd chief minister in the past 1 year, and he lost his own seat, but clearly it's a massive victory. आपको रोकेंगे इस वक्त, प्रहलाद पटेल जी को सुन लेते हैं। और सिर्फ 4-5 महीने में अपने he made his presence very strongly felt. ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, द मोस्ट पॉपुलर फेस, अत्यंत लोकप्रिय चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का आज के दिन में, ऐसे पुष्कर सिंह धामी को मैं निवेदन करता हूं, कृपया आप 2 शब्द कहें। हमारे बीच में अभी आप लोग, सबसे पहले तो बताइए आप लोग सब ठीक हैं? बहुत दिनों बाद भेंट हो रही है। अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने लगातार हमारे बीच में, आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार प्रभारी के नाते
मेरा मार्गदर्शन किया। भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी हमारे चुनाव के प्रभारी भी थे। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है और पूरी चुनाव प्रक्रिया में उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के लगातार समन्वय और लगातार मार्गदर्शन का काम किया। और हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता जिनको उत्तराखंड के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका एक गहरा नाता भी उत्तराखंड से है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से 100% हमको यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया। साथ में सभी को इस महामारी के दौरान लगातार सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख परिवारों में सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम हुआ। और जब हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया पूरी पार्टी के साथ जाकर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया, आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक So there was Prahlad Joshi, in fact, the Union Minister, Harshji, there addressing the media after BJP's victory in the state of Uttarakhand. He was also joined by outgoing Chief Minister Pushkar Dhami, who's incidentally lost the elections, and he was the third Chief Minister for the BJP in the previous term. We'll have to wait and watch as to what the BJP decides vis-a-vis the Chief Ministerial candidate there in the state of Uttarakhand. But before we take a small break, let's look at this aspect, and this is really interesting. Sandeep, I'll come to you first. The party giving that much importance, that much space to its chief ministerial candidate or chief minister, the outgoing chief minister, who incidentally has lost the election. Is that an indication that perhaps he might have lost his seat, but he might be continuing in the chair? Absolutely. I was listening to the comment made by Prahlad Joshi, who said the most popular face.
So it could mean two things, that there is no other alternative or no choice. Having tried the others, the party high command perhaps considers Pushkar Singh Dhami as the best bet, and they will have to find a safe seat for him going ahead. He doesn't have to win an election immediately. He can always wait and seek a re-election. The other alternative is that, of course, he has just lost, but the party has won, and Mr. Joshi has been gracious enough, but they may take a little bit of time to consider and come up with a different choice, if at all. Okay. Okay, we have some breaking news coming in there, Harshji. जी, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा वापसी हो चुकी है। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। मतगणना के रुझानों में बीजेपी आगे है, जिन सीटों के नतीजे आए हैं उनमें भी बीजेपी आगे है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में भारी जीत हुई है बीजेपी की, और उत्तराखंड में भी बीजेपी जीतकर बड़ी जीत की ओर आगे अग्रसर हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालांकि खटीमा से चुनाव हार गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे मीडिया से, और उनके चेहरे पर अपनी हार के गम से ज्यादा पार्टी की जीत की खुशी नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बीजेपी की दोबारा वापसी हो चुकी है। एक तरीके से मतगणना के रुझानों में बीजेपी आगे है। जिन सीटों के नतीजे आए हैं उनमें भी बीजेपी काफी बड़े फासले से आगे है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। लगभग 92 सीटें अभी तक उसके रुझान और जीत में हैं, और मुख्यमंत्री जो वहां के हैं चन्नी जी, चरणजीत जी, वो दोनों सीटों से चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस की बड़ी हार। और गोवा और मणिपुर, दो छोटे हमारे राज्य हैं, वहां भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, और मणिपुर में जो बीजेपी की वोट का प्रतिशत है वो काफी ज्यादा है। गोवा में भी बीजेपी को बहुमत लगभग अब मिल चुकी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह चुनाव जीत चुके हैं।